Good morning, class, and welcome to the next lecture of operations management. तो पिछले लेक्चर में मैंने एक क्विक रिवीजन की थी अबाउट फ्यू मेथड्स हमने एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग को देखा था, ठीक है, एंड वी आल्सो लुक्ड एट एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग विद ट्रेंड, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको कराना चाह रहा हूँ। सो कैन यू जस्ट गो टू द एंड ऑफ चैप्टर सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है। चैप्टर के एंड में सॉल्व प्रॉब्लम्स है, ठीक है। सो we'll start with solve problem number 4.1. Solve problem 4.1 कहता है sales of Volkswagen popular Beetle have grown steadily at auto dealerships in Nevada during the past 5 years. The sales manager had predicted in 2004 that 2005 sales would be 410 Volkswagens using exponential smoothing with weight of alpha equal to 0.30. Develop forecast for 2006 through 2010. You have to develop forecast for 2006 through 2010 using exponential smoothing, ठीक है। और ये exponential smoothing without trend है, this is the normal exponential smoothing, ठीक है। अल्फा आपको गिवन है 0.30 है, ठीक है, और आपके सामने टेबल भी है, ठीक है। तो टेबल में you can see that in the year sales were 450, in the year 2005 sales were 450, in the year 2006 sales were 495, 2007 में 518 थी, 2008 में 563 है, 2009 में 584 है, ठीक है। एंड 2005 में जो फोरकास्ट है इट्स 410। तो बेसिकली आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपने करना है, आपने 2006 की सेल्स फोरकास्ट करनी यूजिंग एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, ठीक है। तो राइट साइड में देखें तो इसकी सोल्यूशन भी दी हुई है आपको, ठीक है। सो बेसिक फार्मूला क्या है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का? द बेसिक फार्मूला ऑफ एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग इज basically so this is the basic formula of exponential smoothing, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अगर आप लगाएं तो ओवर हेयर ए जो स्मॉल ए दिस इज एक्चुअली अल्फा, ठीक है। तो मैं अल्फा नहीं लिख सका, just wrote small a over here. So you have to use basically this formula to forecast sales, ठीक है। the formula क्या है basically forecast at time t is equal to forecast at time t minus 1 plus alpha times the actual value at time t minus 1 minus the forecasted value at time t minus 1. Okay. Probably you cannot see the formula on the screen, I think. Okay. But I hope you remember the formula हमने जो रिवीजन की है पिछले लेक्चर में. Yeah, you can just go back to the slides and see the formula for itself. You may not be able to see the book either. Okay. Anyways, I'll just continue with the lecture. ठीक है, सॉल्व प्रॉब्लम 4.1 की अगर आप राइट हैंड साइड देखें सोल्यूशन वहाँ पर, सो इन द ईयर 2006 वो कहते हैं जो फोरकास्टेड वैल्यू दैट इज इक्वल टू
the forecasted value in year 2005 plus alpha times the forecasted value, the actual value in 2005 minus the forecasted value in 2005. So forecasted value in 2006 is actually equal to the forecasted value in 2005 plus alpha times forecasted value in the actual value in 2005 minus the forecasted value in 2005. ठीक है, इसी तरह 2007 पे अगर आप आ जाए तो forecasted value in 2007 is equal to the forecast value in 2006. ठीक है, ये forecast value in 2006 आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी. ठीक है, जब आप 2006 की forecasted value कैलकुलेट करेंगे तो वही वैल्यू आप 2007 के लिए यूज़ करेंगे. तो 422 होगी. ठीक है, forecasted value 2006 is 422 plus 0.3 which is alpha times the actual value in the year 2006, actual value of sales in 2006 minus the forecasted value in the year 2006. ठीक है, इससे आप 2008 पे आ जाए. 2008 की forecasted value it's equal to the forecasted value in the year 2007 plus alpha which is 0.3 times the forecasted value in the year, sorry, the actual value in the year 2007 minus the forecasted value in the year 2007. ठीक है, so actual value 2007 में है 518, forecasted value in 2007 है 443.9. ठीक है, इसी तरह 2009 पे आ जाए तो आपकी जो है forecasted value in 2009 is equal to the forecasted value in 2008 plus 0.3 times the actual value in 2008 minus forecasted value in 2008. 2010 में आ जाए तो forecasted value in 2010 is equal to forecasted value in 2009 plus alpha times the actual value in 2009 minus the forecast value in 2009. So it's quite simple. आपने simple क्या करना है इस क्वेश्चन में, you have to apply the formula of exponential smoothing. That's it. आपने डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देना और आपने हर साल के लिए फॉर्मूला अलग से अप्लाई करना. ठीक है, पहले आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2006 के लिए, फिर 2007 के लिए, यानी कि हर साल के लिए फॉर्मूला अलग से अप्लाई करेंगे. ठीक है, सो आपने बेसिकली हर साल की फोरकास्टेड वैल्यू अलग अलग से कैलकुलेट करनी है, इसलिए आप हर साल का फॉर्मूला अलग अलग से अप्लाई करेंगे. ठीक है, सो लेट्स गो टू सॉल्व एग्जांपल 4.2. ठीक है, सॉल्व एग्जांपल 4.2 जो है इट्स बेसिकली कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जांपल 7. एग्जांपल 7 आपको बुक में मिलेगी. ठीक है, आई थिंक इट्स ऑन पेज 149 150 पे. ठीक है, बट यू विल फाइंड इन दिस चैप्टर. एग्जांपल 7 इसी चैप्टर में है, सो यू हैव टू रेफर बैक. आप वापस एग्जांपल 7 को जाके थोड़ा आप स्टडी करना पड़ेगा, ये उसी को कंटिन्यू किया गया. ठीक है, so let's go to page 149 and have a look at example 7. ठीक है, एग्जाम्पल 7 में बेसिकली कहता है, अ लार्ज पोर्टलैंड मैन्युफैक्चरर वांट्स टू फोरकास्ट डिमांड फॉर अ पीस ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट. A review of past sales as shown below indicates that an increasing trend is present. तो बेसिकली एग्जाम्पल 7 में जो पहली चीज़ आपने नोट करनी है वो कह रहा है कि an increasing trend is present. ठीक है, एक ट्रेंड प्रेजेंट है इसमें. Smoothing constants are assigned the values of alpha is equal to 0.2, beta is equal to a. The firm assumes the initial forecast for the month F1 was 11 units and the trend over that period T1 was 2 units. So our trend adjusted exponential smoothing model using equation 4, 9, 4, 10 and 4, 8 and 3 steps above is employed. ठीक है,
बेसिकली इस क्वेश्चन में वी आर एम्प्लॉइंग द ट्रेंड एडजस्टेड एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मॉडल। ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में रिवाइज भी कराया। ठीक है, तो हम जो एफ आई टी का फॉर्मूला था ना, एफ आई टी स्मॉल टी का फॉर्मूला, बेसिकली वी आर गोइंग टू यूज दैट। ठीक है, हमने बेसिकली एफ आई टी स्मॉल टी कैलकुलेट करना। ठीक है, ज़ाहिर है उसको कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू स्टेप्स में हमने कैलकुलेट करना होता है, बल्कि देयर आर थ्री स्टेप्स एक्चुअली। तो एक्स ट्रेंड एडजस्टेड एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी कैलकुलेट द फोरकास्टेड वैल्यू। ठीक है, तो उसने फॉर द मंथ 2 के लिए फोरकास्टेड वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट की। ठीक है, तो फोरकास्टेड वैल्यू इन द मंथ 2 इज इक्वल टू अल्फा A1 plus 1 minus alpha F1 plus T1. ठीक है, the forecasted value in the year 2 is equal to alpha times A1. A1 is the actual demand in first month. ठीक है, so alpha times 12 plus 1 minus alpha times F1 plus T1. So F2 is equal to alpha times A1. A1 is the actual demand in the first month plus 1 minus alpha. Alpha is already given in the question. It is equal to 0.2. ठीक है, so 1 minus alpha times F1 plus T1. F1 क्या है यहाँ पे? F1 is the forecast value in the year in the month 1. F1 is the forecast value in the first month. और T1 क्या है यहाँ पे? T1 is the trend at time 1. Trend in the first month. ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ना, टू कैलकुलेट फोरकास्ट वैल्यू विद ट्रेंड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, देन द प्रीवियस फॉर्मूला। ठीक है, so you can calculate F2 which is the forecasted value in the second one equal to 0.2 times 12 plus 1 minus 0.2 times 11 plus 2। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 12.8 यूनिट्स। उसके बाद आपने क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द ट्रेंड इन द सेकंड मंथ। और ट्रेंड का फॉर्मूला है T2 is equal to beta, beta is given in the question, times F2 minus F1। F2 क्या है? F2 is the forecast value in second month and F1 is the forecast value in the first month plus 1 minus beta times T1। T1 क्या है? Trend at the first time period, यानी कि trend in the first month। ठीक है, so T2 हो जाएगा equal to 0.4 times 12.8 minus 11 plus 1 minus 4 times 2, it's equal to 0.4 times 1.8 plus 0.6 times 2 is equal to 0.72 plus 1.2 is equal to 1.98 is equal to 1.92। ठीक है, तो आपके T2 की वैल्यू 1.92 आ जाएगी और F2 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं which is equal to 12.8। ठीक है, so you have to compute the forecast including trend FIT2। ठीक है, so FIT2 का फॉर्मूला क्या है? हमने कहा था FIT स्मॉल t का फॉर्मूला इज इक्वल टू FT प्लस TT। ठीक है, तो FIT स्मॉल t इज इक्वल टू F स्मॉल t प्लस T स्मॉल t। ठीक है, तो यहाँ बिकॉज जो स्मॉल t है विच इज the small t shows the value of the time। ठीक है, in this case small t is equal to, because we want to calculate the forecasted value of the time 2 which is the second month, so FIT2 is equal to F2 plus T2। F2 is 12.8 and T2 is 1.92, तो ये आ जाती है 14.72। ठीक है, इस एग्जांपल में दे हैव आल्सो डन द सेम कैलकुलेशन फॉर द थर्ड मंथ, यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दैट। ठीक है, थर्ड मंथ में उससे पहले फोरकास्ट वैल्यू कैलकुलेट की F3। ठीक है, उसका फॉर्मूला वही है। ठीक है, और उसके बाद फिर T3 कैलकुलेट किए, उसका भी वही फॉर्मूला, एंड FIT3 इज इक्वल टू F3 प्लस T3। ठीक है, सो दिस इज बेसिक एग्जांपल 7। इसी को कंटिन्यू करते हैं इन सॉल्व प्रॉब्लम, और सॉल्व प्रॉब्लम आ जाती है I think it's for number 4.2।
So we just go back to the solved problem जो हम कर रहे थे. So just solve problem number 4.2. ठीक है. So go back to the solve problem 4.2. ठीक है. Just read it. इसमें basically उसने क्या किया है? It continues from example 7. ठीक है. तो उसने month 2 and 3 की calculation की in the example. In this problem they have done the calculation for the month 4. ठीक है. उन्होंने fourth month की calculation की. फोर्थ मंथ की कैलकुलेशन का भी तरीका सेम है. ठीक है. वी हैव टू यूज़ द टू फार्मूला. पहले हमने फोरकास्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है फोर्थ मंथ की. ठीक है. उसका फार्मूला यू ऑलरेडी नो, इट्स अल्फा A3 प्लस 1 माइनस अल्फा F3 प्लस T3. ठीक है. तो A3 gets the actual value in the third month or alpha is given in the question. F3 is the forecast value in the third month and T3 is the trend in the third month. ठीक है. तो यहाँ से आपका F4 आ जाएगा. Then you have to calculate T4. T4 is equal to beta times F4 minus F3. ठीक है. F4 is the forecast value in the fourth month. F3 is the forecast value in the third month plus 1 minus beta times T3. T3 is the trend in the time period 3 यानी कि trend in the third month. So T4 is equal to 0.4 times 17.82 minus 15.18 plus 1 minus 0.4 times 2.10. The other 1.056 plus 1.26 2.32. फिर F at T4 is equal to 17.82 plus 2.32. ठीक है. तो आपके पास अगर F4 और T4 की वैल्यूज आ जाए then you simply have to do. ठीक है. एक बार आपने F4 और T4 की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली तो उसके बाद सिंपल काम रह जाता है. यू हैव टू ऐड दीज टू. So FIT in the fourth month is equal to F4 plus T4 which is equal to 17.82 plus 2.32. उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है सॉल्व प्रॉब्लम 4.3. ठीक है. सॉल्व प्रॉब्लम 4.3 कहती है रूम रजिस्ट्रेशन इन द टोरंटो टावर्स प्लाजा होटल have been recorded for the past 9 years. To project future occupancy, management would like to determine the mathematical trend of guest registration. This estimate will help the hotel determine whether future expansion will be needed. Given the following time series data, develop a regression equation relating registrations to time. Then forecast 2011 registration. Room registrations are in the thousands. ठीक है. तो बेसिकली यू हैव टू डेवलप अ रिग्रेशन इक्वेशन. ठीक है. हमने रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ा था इस चैप्टर में. तो रिग्रेशन एनालिसिस बेसिक्स इक्वेशन होती है. ठीक है. आई होप यू नो दैट इक्वेशन. ठीक है. बेसिक इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस है. ठीक है. दैट इज आपके पास बेसिकली एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. ठीक है. y which is dependent on an independent variable x. ठीक है. And this is I'm talking about case of one independent variable. तो अब कह सकते हैं y is equal to a plus bx. ठीक है. तो where a is a constant and b is also a constant. We normally use y estimated y is equal to a plus bx. ठीक है. हम कहते हैं estimated y because we are basically estimating the value of y. ठीक है. इसमें मेन थिंग यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन है कि आपको डेटा दिया हुआ है 2001 का दिया हुआ है, 2002 का दिया हुआ है, 3 का, 4 का, ठीक है. तो आपका जो है ना registrations. ठीक है. You have to relate the number of registrations to time. Then you have to forecast 2001 to 2011 registrations. Room registrations are in the thousands. तो आपको रूम रजिस्ट्रेशंस का डेटा दिया हुआ है, उसको आपने यूज़ करना है टू फोरकास्ट 2011 रजिस्ट्रेशन. आपको 2001 का डेटा दिया हुआ है, 2002 3 का, 6 7 8 9 ठीक है, एंड सो ऑन.
ठीक है, तो सबसे पहले इस पे आपने क्या करना है, यू हैव टू ट्रीट टाइम एज योर एक्स। ठीक है, टाइम को आपने ट्रीट करना है एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। टाइम आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड टाइम इज एक्स। और जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है दैट इज वाई। ठीक है, सो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू टाइम। ठीक है, यानी कि वाई इज रिलेटेड टू एक्स। ठीक है, सो वाई इज इक्वल ए प्लस बी एक्स अगर आप करें तो वाई विल बी द नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एक्स विल बी टाइम। ठीक है, विच इज नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, तो और नंबर ऑफ ईयर्स आपको दिए हुए 2001 इज द फर्स्ट ईयर, 2002 इज द सेकंड वन, 2003 इज थर्ड, 2004 इज फोर एंड सो ऑन। नंबर ऑफ रजिस्ट्रेंट्स जो हैं वाई इट्स 2001 में 17 है, 2002 में 16 है, 2003 16 है, 2004 में 21 है, 2005 में 20 और सो ऑन चलता रहता है। ठीक है, सबसे पहले आपने, ठीक है, आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई, आप इसका टेबल सा बना लें, वाई की वैल्यूज़ को लिस्ट कर दें, एक्स की वैल्यूज़ को लिस्ट कर दें और नंबर ईयर को भी लिस्ट कर दें। ठीक है, और ये टेबल बना भी हुआ है सोल्यूशन में। ठीक है, अब फिर आपने क्या करना है, एक्स को और एक्स वाई कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यूज़ गिवन है आपको। ठीक है, एक्स इज़ बेसिकली टाइम। ठीक है, टाइम ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, ये एक्स हो जाएगा आपका सारा। ठीक है, फिर वाई की वैल्यूज़ आर ऑल्सो गिवन। ठीक है, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेंट्स जो है दैट इज़ वाई। ठीक है, वो भी गिवन है आपको। फिर आपने एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज सिंपली द स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक है, सो एक्स की पहली वैल्यू 1 है, सो एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा। दूसरी वैल्यू एक्स की 2 है, एक्स स्क्वायर वैल्यू 4। थर्ड वैल्यू एक्स स्क्वायर इज 3, एक्स स्क्वायर वैल्यू 9 एंड द फोर्थ वैल्यू एक्स 4, एक्स एक्स इज 4, तो उसके एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 हो जाएगी और फिर एक्स 5 है एंड एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 हो जाएगी। फिर आपने एक्स वाई की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। एक्स वाई क्या है, सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स वाई का मतलब है आपने एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो आप 1 और 17 मल्टीप्लाई करेंगे आप 16 आ जाएगा, 4 16 करेंगे तो 32 आ जाएगा, 9 और 16 करेंगे 48 आ जाएगा, 16 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा, 25 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपने सारी एक्स स्क्वेयर्स की वैल्यू निकालनी है, यानी कि एक्स के अगेंस्ट जितने भी एक्स स्क्वायर बन रहे हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। इसी तरह जितने भी एक्स वाई बन रहे हैं सबकी वैल्यूज निकालनी। ठीक है, यानी कि जितने भी एक्स होंगे और जितने भी वाईज होंगे उतनी एक्स वाई होंगी। ठीक है, सारे एक्स स्क्वायर्स की वैल्यूज आप निकाल के टेबल में लिख लें, एक्स वाई की वैल्यूज कैलकुलेट करें, टेबल में लिख लें, देन यू हैव टू टेक द सम ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर्स। ठीक है, summation of x square means the sum of all x square, it's equal to 85. So you have to calculate summation x y, the sum of all x y, it's equal to 978. Okay, so b is equal to summation x bar minus n times x bar y bar divided by summation of x square minus n x bar square. Summation x y you can calculate from the table, summation of x square भी table से आ जाएगा, n is the number of observations. ठीक है, और x bar is the average of x, y bar is also the average value of y, x bar square is simply the square of the average value of x. ठीक है, इससे आपके पास b आ जाएगा, so b is equal to 978 minus 9 times 5 times 20 times 22 divided by 285 minus 9 times 25, it's equal to 1.135. ठीक है, इसी तरह a is equal to y bar minus b x bar. ठीक है, a की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट करनी है, y bar you can calculate, it is simply the average of all y's. ठीक है, y bar minus b x bar क्या है, x bar is the average of all x, is equal to 20.22 minus 1.135 times 5, 20.22 minus 5.675 is equal to 14.54. So y की estimated value will be is equal to a plus bx. ठीक है, so estimated value y से फॉर्मूला जो यूज़ किया हो रहा है, estimated value y is equal to a plus bx. ठीक है, where a and b are both constants. Estimated value y is equal to a 14.545 plus 1.135x. ठीक है, so this is the general equation. ठीक है, this is the general trend equation using regression analysis. इस इक्वेशन का यूज करिए predict the value of y. ठीक है, यानी कि you can predict any value y using this equation given that you have the value of x. ठीक है, अगर आप यानी कि इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं to predict value of y. ठीक है,
लेकिन ज़ाहिर है वाई की वैल्यू की को प्रेडिक्ट करने के लिए आपको एक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, एक्स दिया हुआ है, वो कह रहा है एक्स इज द ईयर 2011। तो 2011 को अगर देखें, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 2001। 2001 में हम शुरू हुए, तो अगर 2011 तक जाएं तो 2001 इज T1, 2002 इज T2, यानी कि टाइम 2, 2001 इज टाइम 1 एंड 2002 इज टाइम 2। 2011 कौन सा साल बन जाएगा? इट विल बी द 11th ईयर। ठीक है, सो x इज इक्वल 11 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, यू विल गेट द एस्टिमेटेड वैल्यू y या प्रेडिक्टेड वैल्यू y। So the predicted value y is equal to 27030 guessed in 2011. Okay, students, so that is all for this lecture, and hopefully you will be able to understand. So just go and read the examples. ठीक है, I'm sorry ये book जो है screen पे नहीं show हो सकी, ठीक है, so you won't be able to have a look at it lecture के दौरान, but that's what happens when technology fails, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी की कुछ लिमिटेशंस हैं, बट नेवर माइंड, इसको अपने तो आप स्टडी करें बुक में, ठीक है। डू गेट होल्ड ऑफ द बुक, मैं बुक भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसमें से देख लें, इट्स इजी, आप स्लाइड्स में से फॉर्मूले देखें और बुक की जो एग्जांपल हैं सॉल्व हैं, ठीक है, बुक की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हैं, उसको देखें, जो हमने एग्जांपल डिस्कस की उसको देखें, ठीक है, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू, बाय।